Hello, my students. Hope you are all well. So we have to begin our first chapter, that is the biology fabric. In this chapter, we have to cover these 6 points, that is the variety in fabric. Second is fiber. Third point is compound fibers. Fourth, spinning cotton yarn. Fifth, yarn to fabric. And sixth, history of clothing material. Now, फर्स्ट पॉइंट इज वैरायटी इन फैब्रिक। ओके, आप जब मार्केट वगैरह में जाते हो क्लोथ की शॉप में क्लोथ खरीदने, कपड़े वगैरह दिवाली के या बर्थडे के वगैरह, आप लोगों को आपने नोटिस किया रहेगा कि जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है कि ये डिफरेंट मटेरियल है, ये कॉटन है, ये सिल्क है, ये नया मटेरियल आया है सिंथेटिक में। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली वेराइटीज कितनी सारी मिलती है फैब्रिक में वो देखना है। ओके, there are so many different types of fabrics available like cotton, silk, wool और synthetic. Okay, जो cotton, silk और wool है वो नेचुरल फाइबर है और सिंथेटिक मतलब जो आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं, इसमें कोई भी नेचुरल चीजें नहीं डलती है, वो अलग ही केमिकल से बनता है। ओके, now you wonder what this different fabrics are made up of. Okay, कभी सोचा है कि फैब्रिक कैसे बनता है? Now when you look at any fabric, it seems continuous. Okay, आपने कभी फैब्रिक और कुछ भी हो तो आपने कभी ध्यान से देखा तो एक कंटिन्यूस पैटर्न फॉलो करता है। ओके, ये देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट किया है। Now look at it closely and what do you notice? Here we notice regular pattern arrangement. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्रिस क्रॉस पैटर्न अरेंजमेंट है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद रेगुलर पैटर्न हो रही है। ओके, select a piece of cotton fabric. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. Okay, अब जब कॉटन फैब्रिक लेना और उसके कुछ भी पीस वगैरह निकल गए हो, साइड से धागे निकल गए, वो हम लोग उसको निकाल कर देख रहे हैं। ओके, if no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or the needle. आप पिन और needle से आप yarn को निकाल सकते हो। ओके, yarn मतलब धागा। We find that the fabric is made up of yarns arranged together, and what are these yarns made up of? Okay, हम लोगों ने देखा कि फैब्रिक है, फैब्रिक किससे बनता है? yarn से। ओके, yarn को अरेंज करके फैब्रिक बनाया जाता है। बट अभी ये yarn किससे बनता है वो देखते हैं। The cloth appears to be made up of yarns woven together. Okay, जो cloth होता है वो appears होता है कि सभी yarns को woven करके together form करके cloth बनते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है, ये पिक्चर है वो yarn का। यहाँ पे देखो कॉटन क्लोथ से हम लोग एक एक yarn पुल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को नीचे yarn के अलग पीसेस मिल रहे हैं और ऊपर हम लोगों का। Now, second topic is fiber. The thin strand of a thread that we see are made up of still thinner strand is called fibers. Okay, जो आपको strand है मतलब एक धागा लेते हो तो उसके साइड में आपको पता है छोटे छोटे thinner strands दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Fibers. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of फाइबर्स। ओके, जो फैब्रिक्स है वो किससे बनता है? yarn से, और yarn जो है वो किससे बनता है? फाइबर्स से। Where do these fibers come from? And the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from a plant and animals. Okay, कौन कौन से? Cotton, jute, silk and wool obtained from plants and animals. जो cotton and jute है वो कौन से हम लोगों के प्लांट्स फाइबर्स है, एंड सिल्क एंड वूल है वो कौन से फाइबर्स है? एनिमल्स। एंड these are called natural fibers, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? natural fibers. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. जो cotton and jute है वो किससे मिलते हैं हम लोगों को? प्लांट से। एंड wool and silk fibers है वो किससे मिलते हैं? एनिमल्स से। Wool is obtained from the flanks of a sheep or the goat. Okay, जो wool है वो किससे मिलता है? flanks of a sheep और goat. जो शीप के बाल होते हैं और गोट के जो बाल होते हैं उससे हम लोगों का क्या बनता है? वुल।
and it is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. और hair होता है rabbit, yak and camel से, उससे भी बनता है wool. Silk fibers are drawn from cocoon of silkworms. Okay, silk fibers होता है वो किससे बनता है, जो cocoon होता है, एक silkworm करके एक इंसेक्ट है, मतलब एक इंसेक्ट है, वो क्या करता है, अपने सलाइवा से अपने कोकून फॉर्म करते हैं. ओके, तो वो कोकून से हम लोगों का सिल्क फाइबर बनता है. फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स नेचुरल फाइबर्स were the only one available for making fabrics. ओके, जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हम लोगों ने सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही यूज की है. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substance which are not obtained from plant or animal sources. Okay, but last 100 years में हम लोगों ने ऐसे डेवलप केमिकली फाइबर्स डेवलप की है जो हम लोगों को प्लांट और एनिमल्स के बिना हम लोग वो फाइबर्स को यूज कर सकते हैं क्लोथ बनाने के लिए. एंड दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. और जो भी फाइबर्स हम लोगों को केमिकली मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं. Some example of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. Now our third point is some plant fibers. First is cotton. This cotton wool is used for the filling mattresses, quilts or the pillows. आपने cotton तो देखा ही होगा. Okay? और वो सब किस में यूज होता है, mattresses, quilts and the pillows में. Where does this cotton wool come from? It is grown in the field. Cotton plants are usually grown at a place having a black soil and the warm climate. Okay, cotton plants कहाँ grow करते हैं, जहाँ पे land में black soil हो and climate कैसा हो, warm climate. The fruits of cotton plants are about the size of a lemon. Okay, जो cotton flower के fruits होते हैं cotton के, वो कितने होते हैं, size of lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with the cotton fibers can be seen. Okay, after mature जो balls है वो क्या हो जाते हैं, open हो जाते हैं, burst होके, मतलब अपने आप ही खुल जाते हैं and पूरा हम लोगों को cotton मिलता है. It looks like field covered with a snow. इट्स लुक लाइक फील्ड का कैसे कवर्ड है, पूरा स्नो से. देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स इंसर्ट किए, ऐसा ही लग रहा है कि जैसे प्लांट्स के ऊपर स्नो कवर्ड है. ओके, फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड. और जो भी ये प्लांट के ऊपर कॉटन दिख रहा है वो हम लोग हाथ से ही पिकअप करते हैं वो लोग. फाइबर्स आर then separated from the seeds by the combing. Okay, fibers जो भी है वो seed से separate करते हैं combing से. And this process is called gigging of cotton. और ये process को क्या बोलते हैं, gigging of cotton. Gigging was traditionally done by hand. पहले gigging हाथों से ही करते थे. These days machines are also used for the gigging. अभी क्या करते हैं, machines use करते हैं. देखो यहाँ पे एक लेडी है वो गिगिंग कर रही है, गिगिंग प्रोसेस कर रही है. Okay. Next topic is jute. Jute fibers is obtained from the stem of a jute plant. Okay, जो jute fibers है वो कहाँ से मिलते हैं, jute plant से, stem से. jute plant की जो stem होती है उससे. It is a cultivated during the rainy season. और rainy season में cultivated करता है, मतलब rainy season है तभी वो jute plant stems को निकाल देता है. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. India में कहाँ मिल रहा है, West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at the flowering stage. jute plant कब harvest करता है, जब flowering stage आ जाती है, flowers आने की start होता है तभी harvest कर देता है. The stem of a harvested plant are immersed in water for few days. Okay, जो भी stems है harvested की हुआ है उसको किस में डाल देते हैं, थोड़े दिनों तक पानी में रहने देते हैं. The stems rot and the fibers are separated by the hand. और जो भी steam होती है वो पानी के अंदर रह के सड़ जाती है थोड़ी, तो फिर वो fibers कैसे हम लोग हाथों से separate कर सकते हैं. To make fabrics, all these fibers are first converted into the yarns. हम लोगों को फैब्रिक बनाने के लिए पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फाइबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा यार्न के फॉर्म में. नाउ स्पिनिंग कॉटन यार्न. ओके, अभी स्पिनिंग कॉटन यार्न कैसे हम लोग यार्न कैसे बनाते हैं कॉटन से वो देखते हैं.
Hold some cotton wool in one hand and pinch some cotton between the thumb and the forefinger of the other hand. Okay, cotton लेना है हाथ में और pinch करते करते आपको roll करना है. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Okay, अभी cotton को pull भी करते जाना और twist भी करते जाना. Are you able to make a yarn? Yes, हम लोग थोड़े yarn बना पाएंगे. The process of making yarn from fibers is called the spinning. और ये process को क्या बोलते हैं हम लोग? Spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and the twisted. और ये process में क्या करते हैं कि जो भी mass of cotton wool है हम लोग वो निकाल कर उसको twist करते हैं. This bring the fibers together to form a or yarn. Okay? और ये इससे क्या होता है जो भी fibers होता है वो एक साथ मिलके yarn produce होता है. प्रोड्यूस करता है. A simple device used for the spinning is the hand spindle and also called तकली. Okay, जो simple device है उसको क्या कौन सा है? एक तकली है. And another hand operated device used for spinning is चरखा. आपने चरखा वर्ड तो सुना ही होगा, गांधी जी चरखा चलाते थे. और दूसरा है ये स्पिनिंग, स्पिंडल मतलब तकली. ये देखो यहाँ पे दिया है पिक्चर में. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of independence movement. He encouraged people to wear clothes made up of homespun yarn termed as the khadi. Okay, जो हम लोग खुद खादी के कपड़े आपने देखे होंगे जो इंडिया के लोग बनाते थे अपने हाथों से चरखा चला के. And shun imported clothes made in the mills of Britain. Okay, खादी यूज करने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हम लोगों का खादी का पूरा वो जो भी मार्केट थी वो बंद कर दिया. वो लोग बोलते थे हम लोग जो कपड़े बनाते थे वो ही यूज करो जो आते थे ब्रिटेन से. टू पॉपुलराइज and promote khadi, the government of India constituted called a Khadi and Village Industries Commission in 1956. Okay, और खादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कमीशन बिठाया. Okay, in 1956, spinning of yarn on a large scale is done with the help of a spinning machine. Okay, spinning of yarn large scale में करना पड़ता है तो machine use करते हैं. After spinning, yarn are used for making fabrics. Okay, spinning हो जाए उसके बाद yarns used होते हैं fabrics बनाने के लिए. Yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. बहुत सारे ways है कि yarns हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं. द मेन प्रोसेस इज वेविंग एंड नाइटिंग. जो दो मेन प्रोसेस है वो एक है वेविंग एंड दूसरी है नाइटिंग. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग. ओके, दो सेट्स ऑफ yarn टुगेदर साथ में मिलके हम लोग जो फैब्रिक बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेविंग. द टू सेट्स ऑफ yarn आर वोन टू मेक अ फैब्रिक. The yarns are much thinner and the weaving of fabric is done on looms. Okay, जो yarn होता है वो बहुत पतले होता है तो weaving of fabrics होता है वो looms में. The looms are either hand operated or power operated. जो looms होते हैं वो हाथों से चलते हैं नहीं तो पावर से. देखो यहाँ पे machines है और ये एक लेडी है जो हाथों से वोन कर रही है. Second process is knitting. In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Okay, ये knitting के लिए हम लोगों को सिर्फ एक ही piece of fabric चाहिए, दो की जरूरत नहीं है. और knitting यूज होता है स्वेटर्स बनाने, शॉल्स बनाने में हम लोग knitting यूज करते हैं. Have you ever pulled the yarn from the other torn pair of socks? Okay, what happened? आपने कभी मोजे वगैरह फट जाते मतलब छेद हो जाते तो आपने कभी उसका धागा निकाला तो पूरा एक 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 धागा निकलेगा. देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो पूरा एक धागा निकल रहा है. A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Okay, single yarn pull out होता है पूरे fabric में से. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Okay, जो
सॉक्स है और क्लोथिंग आइटम होता है वो किससे बनते हैं, नाइटेड फैब्रिक से। नाइटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन दी मशीन, हाथों से करता है नहीं तो मशीन से करते हैं। वीविंग एंड नाइटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। ओके, वीविंग और नाइटिंग करने के लिए different kinds of fabrics use करते हैं and these fabrics are used for variety of clothing items। और यही fabrics हम लोग use करते हैं variety types of clothing items बनाने के लिए। देखो यहाँ पे एक woman है, वो हाथों से नाइटिंग कर रही है और ये मशीन है जो मशीन से नाइट हो रहा है। Our next topic is history of clothing material. Have you ever wondered what materials people used in ancient time for the clothes? आपने कभी सोचा है कि ये सब materials तो अभी आए, पहले पहले लोग क्या पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे? It appears that those time people used to bark and the big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves। okay, पहले लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े कोई ट्री के बड़े लीव्स है या एनिमल स्किन है वो सब पहन के अपने आप को कवर करते थे। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and the grass into mats and baskets. Vines and animals' flanks of the hair were twisted together into a long strands। Okay, धीरे धीरे बाद जब एग्रीकल्चर कम्युनिटीज बनी तो वो लोगों ने देखा कि ग्रास से मैट्स एंड बास्केट्स बनते हैं, एनिमल फेंस और उसके हेयर यूज करके हम लोग कपड़े बना सकते हैं। दिस वे वोन इनटू फैब्रिक्स। ओके, और वो सब वोन करके फैब्रिक्स बनते हैं। The early Indians wore fabrics made out of cotton that grown in a region near the river of Ganga। Okay, पहले पहले इंडिया के लोग क्या करते थे, जो भी रिवर गंगा है उसके अराउंड जो कॉटन ग्रो होता था वो निकाल कर उसको यार्न के फॉर्म में और उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके वो यूज करते थे। द फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स अ नेचुरल फाइबर्स। ओके, फ्लैक्स करके एक प्लांट है वो भी हम लोग को नेचुरल फाइबर्स देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स were cultivated near the river of Nile। ओके, इजिप्ट में कॉटन और उसके साथ फ्लैक्स दोनों कल्टीवेटेड होता था। जैसे हाँ, रिवर नाइल में, जैसे हम लोगों की गंगा रिवर है वहां पे वैसे नाइल रिवर है वहां पे। एंड वेर यूज टू मेकिंग फैब्रिक, और उससे फैब्रिक्स बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज not known, people simply grab the fabrics around the different parts of their body। okay, पहले तो क्या करते थे, स्टिचिंग मशीन वो सब थोड़ी था, नॉर्मली ड्रैप करके अपनी बॉडी को कवर करते थे। Many different ways of draping fabrics were used। With the invention of the swing needle, people started stitching fabrics टू मेक क्लोथ्स। ओके, इन्वेंशन हुआ नीडल और स्विंग मशीन्स और वो सब का, उसके बाद क्या किया वो लोगों ने फैब्रिक्स बनाना स्टार्ट किया। स्टिचेड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू अ मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। ओके, स्टिचेड जो क्लोथ थे बाद में इन्वेंशन मेनी वेरिएशंस आए। ओके, अभी भी आप देख सकते हो कि टी शर्ट, पैंट्स, जीन्स, बहुत सारे टाइप्स के हम लोगों के पास वेराइटीज है क्लोथ की, साड़ीज। But it is not amazing that even today sari, dhoti or lungi or turban is used as unstitched piece of the fabric। अभी भी हम लोग अनस्टिच फैब्रिक यूज करते हैं, जैसे साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन। टर्बन मतलब जो पंजाबी लोग अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं उसको टर्बन बोलते हैं। वो अनस्टिच होती है, पूरा एक ही पीस होता है क्लोथ का। Just as there is a large variety in the food eaten all over the country, a large variety exists also in fabrics and the clothing items। आपको पता ही है इंडिया में बहुत सारे खाने की चीजें रहती है। नॉर्थ साइड जाओ तो वहां पे पंजाबी के खाने बहुत फेमस है, जैसे छोले कुलचे वो सब। साउथ साइड जाओ तो वहां पे क्या आता है, इडली सांभर वो सब। तो वैसे ही जहां जहां हम लोग अलग इंडिया में अलग अलग प्लेस पे जाओगे तो वहां वहां फैब्रिक्स में और क्लोथिंग आइटम्स में भी आपको डिफरेंट मिलेगा। नाउ मेमोरी मेमोरी मैप इज कॉटन रोल्स। गीगिंग करके क्या करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। ओके, फाइबर्स क्या बनता है, फाइबर से स्पिनिंग करके यार्न फॉर्म करते हैं।
यार्न से हम लोग क्या करते हैं, नाइटिंग एंड वेविंग करके क्या फॉर्म करते हैं, फैब्रिक। थैंक यू सो मच।